Uh, Assalamu alaikum. Welcome back in today's lecture. So today we are going to discuss some more topics of calculus and analytical geometry. Before going to proceed further, I want to repeat the last lecture topics which we have studied, which we have covered. So from the differentiation, starting from the differentiation. So in differentiation, we have studied different topics, different techniques of differentiation, how to derivate a function, how to differentiate a function. So suppose if we have any given function which involving some polynomials and having the different degrees to each term of the polynomials. So we have learned to derivate these polynomial through power rule. If we want to know about the differentiation of any constant number, we know that it is always zero. So we have studied constant function rule, we have studied power product rule, we have studied any constant number multiplied with an other function and how to derivate that function. So using constant multiplied by the function, we can differentiate that function. After that, we have learned many different techniques of differentiation. We have studied trigonometric functions, we have studied logarithmic functions and how to derivate that functions. We have studied some generalized terms and formulas for differentiation of that function. So proceeding to further, we have studied chain rule in our last lecture, how to derivate with respect to chain rule to different functions. So in this lecture we are going to discuss about the explicit and implicit function. So now focusing towards the definition. So an equation of the form y equal to f of x. Suppose we have any equation of the form y equal to f of x. This is basically define y explicitly. S means here y defined explicitly. We are defining y explicitly as a function of x. The dependent variable becomes the function of independent variables, and that dependent variable is known as explicit function, which is, we usually know that this is y. So proceeding towards considering the example as y equal to 3x minus 2, y equal to 3x minus 2. This is another example. So we can simply see that y equal to 3x minus 2, y equal to x square plus 5. Here y defined explicitly. Y is explicitly x square plus 5. So these are it is defining the explicit value of the y. So now proceeding towards the implicit function. Now see that in implicit function we are defining the value of y. Here only one variable is involved. The value of y is depend upon the x. So 3x minus 2 or x square plus 5, only one variable x. Now what are we checking here in implicit function? This becomes equality signs towards 0. Okay, and here involves two functions, two variables, y x square. So in this example, y square plus 2xy plus 4x square. Now in whole equation you can see that there are two independent variables, and these values of independent functions is related to each other. We are taking another example here, y cube minus 3y x square plus 2. Now we can see that here involves two functions, y and x square. So similarly a constant also occurs. So such type of function, such type of statement, such type of equation, we name that implicit function. So we can easily understand the difference between the implicit and explicit function. We can say that, in other words, any function which involves the values of one variable, which is known as dependent variable, depends upon any independent variable, which is here x minus 2, or
we can simply say that the y is the value of y depends upon the x. So such type of function is known as explicit function. And in implicit function we can simply say that whenever two or more variables are multiplying in any statement, so such a statement is known as implicit function. So proceeding towards further examples in our next review topics. So before going to proceed examples, I want to repeat this whole in Urdu. देखें, हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, उसको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन हम किस तरह डिफाइन करते हैं. बेसिकली हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा y जो बराबर होगा f of x के. हमने सिंपली अपने लास्ट एग्जांपल्स में देखा है कि वी हैव y इक्वल टू f of x. इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y. y is said to be, now here y is said to be explicit, यानी y की जो एक्सप्लिसिटली फंक्शन है ये डिफाइन कर रहा है x को, ठीक है. सिंपली अगर एग्जांपल को देखें, y इक्वल टू 3x माइनस 2. y की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? x पे कर रही है. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स x पे माइनस 2 टाइम्स. तो y की वैल्यू 3x माइनस 2 है. इस एग्जांपल को देखें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5. इसको हम क्या कहेंगे? सिंपली के y की वैल्यू डिफाइन कर रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स, ठीक है. तो दीज आर नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन. नाउ हम इसको ये समझ सकते हैं इसको कि y इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बाय x, ठीक है. अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने डिफरेंस क्या लेना है? देखें, y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट में क्या है? दो वेरिएबल्स हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x एंड y. सो इनकी वैल्यू, इनका जो प्रोडक्ट आएगा ओवरऑल पूरा सम करेंगे तो दैट इज बिकम इक्वल टू 0. देखिए, इसमें कोई y की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं अगर x हमारे पास हो, यानी कंपोजिट फंक्शन है. कंपोजिट फंक्शन किस हिसाब से है? डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में कंपोज करके एक टुवर्ड्स 0 के हवाले से एक जो है हमारे पास इक्वलिटी की इक्वेशन बन रही है, ठीक है. एक अदर एग्जांपल है y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है. यहाँ पे क्या है? y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2. दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, टुवर्ड्स जा रही हैं इक्वलिटी साइन 0 के बराबर. सो दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. सिंपली वहाँ पे एक्सप्लिसिट में ओनली वन वेरिएबल डिफाइन था जो कि वैल्यू निकाल रहा था एक डिपेंडेंट वेरिएबल की. यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, दोनों की मुख्तलिफ इक्वेशंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. सो सिंपली हम इसको इतना समझ सकते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन बेसिकली क्या होता है यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, ठीक है. फर्दर हम एग्जांपल से समझते हैं. ओके, सो एग्जांपल को समझते हैं. यहाँ कहा गया है यूज द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड dy by dx if y 5y स्क्वायर प्लस साइन y इक्वल टू x स्क्वायर. एक फंक्शन है हमारे पास दैट इज नोन एज 5y स्क्वायर प्लस साइन y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है. हमने करना इतना है, इसकी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लेनी है, ठीक है. अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किस तरह होती है वो हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है. सपोज कर लें, सोल्यूशन ले लें, इसका सोल्यूशन कर लें. इसकी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसकी डी ओवर डी एक्स ऑफ 5y स्क्वायर प्लस साइन y इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है. अब देखें, बेसिकली जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है उसको मजीद हम किस तरह कर सकते हैं? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ 5y स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन y इक्वल टू, इसकी क्या होगी? 2x होगी सिंपली, ठीक है. इसकी डिफरेंशिएशन ऐसी आएगी. अब देखें,
इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं सिंपली 5 को हमने कॉमन लिया, इसकी क्या आएगी 2y। अच्छा y है, y हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी वैल्यूज होती है, ठीक है, तो इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करनी होगी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे dy/dx, ठीक है, प्लस इसकी करें sin y की क्या होती है, हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे उसकी जनरलाइज टर्म में हमने उसकी डिफरेंशिएशन चेक की थी। sin y की होती है बेसिकली cos y, तो ये cos y, अब ये एंगल है इसकी अलग से करनी होगी हमें, दैट इज नोन एज dy/dx इक्वल टू 2x। अच्छा अब इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं tan y इंटू dy/dx प्लस cos y into dy/dx, that is equal to 2x, ठीक है, क्योंकि x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो हम सिंपली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dy/dx को अगर कॉमन लेना चाहें तो दैट इज बिकम हमारा tan y प्लस cos y इक्वल टू 2x, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dy/dx की अगर वैल्यू देखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन tan y प्लस cos y, तो इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, ये हमारी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। Once again going to repeat this problem, we have given 5y square plus sin y equal to x square. This is a simple statement, so it is asking that we have to find out the implicit differentiation. So according to last differentiation techniques, we know that if we are applying, we having two variables, the one variable involves the values of first variable to other variable. For example, we have used chain rule in different techniques. So here the dependent variable becomes y and the independent variable becomes x. So simply what we have done, we have simply in simple way we have taken the differentiation of x variable, that is independent variable, and the value of y which is dependent upon the another value. So we have to apply some chain rule techniques. So we have to first check the take the differentiation of y, then the differentiation of its angle or its inside of the function differentiation. So simply what we have done here, we have simply taken the function 5y square plus sin y equal to x square. We have applied both side differentiation. So it becomes simply d over dx of 5y square plus d over dx of sin y, that has become 2x. The differentiation of x square becomes 2x. So simply we have applying here differentiation, the differentiation of y square becomes 2y, and this dy by dx is the differentiation of y, because here dependent variable is y. So we are taking the differentiation of y again, plus this plus becomes same plus. So we have taken the differentiation of sin y. We know that in our differentiation formula, the differentiation of sin y becomes cos y, and this differentiation again of the angle which involves in the function y, that is become dy by dx. So that is become 2x. In here we have simply written the whole differentiation of taken function. We have taken dy by dx common here, and simply we have cross multiplied, and that has become 2x over tan y plus cos y. So this is the implicit differentiation of 5y square plus sin y equal to x square. Okay, so now we are going to further focus on the implicit differentiation. So we have taken considering any function y equal to, that is f of x. So we have to find the differentiation of y with respect to x. Then what we are going to do, we are going to simply differentiating both sides the equations with respect to x,
and considering the y as a differentiable to the x. So then we are going to simply solve the differentiation of y with respect to differentiation of x. Now we are going to further check on the board written concepts. So we are further focusing on this definition. So we have considering any function that is equal to y equal to f of x. Then we have to find the differentiation of y with respect to x. So what we are going to do, we are simply differentiating both sides with respect to x. We are differentiating both sides, dy by dx, df of x over dx. Differentiating both sides with respect to x, creating y as differentiable of x, and we have to create the y as it is differentiable of x. So then we are and finally we are going to solve for dy by dx. Again going to repeat this in Urdu. हमने सबसे पहले कोई भी जो फंक्शन है y that is equal to f of x, उसको f of x के बराबर लेना है, ठीक है. उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है x की, सॉरी y की विथ रेस्पेक्ट टू x. हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको हम बोथ साइड्स जो है उसकी जो है डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है. और जो हमारे पास जो y फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑफ x लेंगे. सॉरी, जो y फंक्शन होगा, ठीक है, ये y फंक्शन होगा, इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी ये फंक्शन अगेन डिफरेंशिएट होगा y का फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है. उसके बाद फाइनली हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है dy बाई dx को, ठीक है. सो ये फर्दर हम इसको देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, उसके हवाले से इसको हम मज़ीद ट्राई करके सॉल्व करते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन है दैट इज इक्वल टू dy बाई dx हमने फाइंड करनी है. डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड करनी है. फंक्शन क्या है, xy इक्वल टू 1, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन है. तो सिंपली हमने करना क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हमने पहले सीखा, उसके मुताबिक हमने सबसे पहले बोथ साइड्स dy बाई dx यानी d डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स x y, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट किसकी करनी है विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 की, ठीक है. तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसकी, वो कैसे होगी हमारे पास, देखिए ये प्रोडक्ट रूल है, एक्स वाई दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम सिंपली प्रोडक्ट रूल के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे. तो ये हमारे पास क्या होगा, x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ y प्लस y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x. ये हमारे पास ये कांस्टेंट की हमेशा जो डिफरेंशिएशन आती है दैट इज इक्वल टू 0 आती है, ठीक है. तो x dy बाई डी एक्स, क्योंकि y की डिफरेंशिएशन होगी, उसके बाद y क्योंकि ये x की डिफरेंशिएशन 1 होगी, सो हमारे पास इक्वल टू 0, या इसको हम इस तरह इससे भी लिख सकते हैं x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0, या x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, ठीक है. या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स हमारे पास जो बनेगा दैट इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये माइनस बनेगा, ठीक है, माइनस y ओवर x, ठीक है. सो दैट इज द simple implicit differentiation of this function. So we are going to repeat this example once more. We have to take implicit differentiation of xy that is equal to 1. Here function is given as xy that is equal to 1. So we have learned the lectures regarding the implicit differentiation. So simply we have applied the both side differentiation with respect to x, then we have taken the differentiation. Here we are applying the both side differentiation with respect to x, so d over dx of xy, d over dx of 1. So this, as it seems that x and y both are multiplying with each other, so simply we have taken
we have used the product rule of the differentiation techniques. So simply x taking as constant, we are differentiating y, then we are going to difference plus addition sign, we are going to differentiate x taken as y as constant. So simply it gives, and the differentiation of any constant number, we know that that is equal to 0. So simply we have taken here x dy or dx, so the differentiation of dy by dx plus y, the differentiation of x with respect to x is 1. So it becomes equal to 0. So simply we are taking here and x dy by dx. So simply if we move towards equality sign there, it becomes minus y. So x dy by dx is equal to minus y. So here the overall function of dy by dx becomes minus y over x. So simple, it is the basic differentiation implicit techniques. Okay, so now we are going to further differentiate a function that is given equal to x cube plus y cube equal to 1. So we have to differentiate this function according to procedure. What we are going to do, so first of all we are going to differentiate both sides with respect to x. So we are differentiating this function as dx cube plus y cube over x equal to differentiation of 1 with respect to x. So we have simply given here, it is asking that we have to find d square y double differentiation of the function with respect to x. So simply what we have done here, so the differentiation of this is 3x square plus 3y cube, 3y square, that is differentiation of y with respect to x, again according to chain rule. So simply it becomes 0. So here we can simply write this as taking 3x square equal to minus 3y square dy by dx. We can write this, so here it becomes, both are cancelling to each other, so the differentiation of dy by dx simply become as x square minus y square equal to dy by dx. So that is the first differentiation of the function. It becomes x square upon y square, and minus is of both sides taking minus. So dy by dx becomes minus x square upon y square. So we are going to further differentiate this. So as we are looking here, it is a rational function. It is any quotient rule. So we are going to apply this function as according to quotient formula. So according to the quotient formula, we know that we are going to differentiate that is become, suppose, minus. So here taking numerator as constant, and we are going to differentiate denominator, that is y square minus taking denominator as constant, we are differentiating numerator divided by whole square of denominator. So it becomes minus x square into 2y, again differentiation of dy by dx, minus y square, that is become 2x, and here it becomes 0. Okay, sorry. So it becomes y power 4. We are going to simplify this as, it becomes simply
upon y power 4. So simply so here dy by dx, so we know that the value of dy by dx equal to, so we are substituting the values of dy by dx into this, so it becomes simply 2y x square minus x square upon y square minus so it becomes simply this y is cancelled to eat this and this become minus minus, this minus become plus, so it becomes 2x power 4 plus 2xy square upon y power 4. So simple, this is the simple differentiation of 2xy cube. So simple, this is the simple differentiation of, we can name that as equal to d square y upon dx square. Now we are going to repeat this problem again in Urdu especially. यहाँ पे एक फंक्शन मिला हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जो है हमारे पास 1 है, इसकी हमने 2 मरतबा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लेनी है, ठीक है। तो 2 मरतबा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम किस तरह ले रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, बोथ साइड किया, इस साइड भी किया इस साइड भी किया, यानी इस साइड भी किया इस साइड भी किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका वो पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, इसकी सिंपली डिफरेंशिएशन ली है और हमने क्या निकाला है, यहाँ पे dy और dx की वैल्यू निकाली है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके dy और dx की वैल्यू निकाली है हमने ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, किसकी, विथ रेस्पेक्ट टू इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इसको डबल डिफरेंशिएट किया हुआ है, क्वोशिएंट रूल किया था, अपॉन में फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो सिंपली हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आएगी दैट इज बिकम, ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है, उसको कॉमन लिया, उसके बाद 2y की डिफरेंशिएशन होगी dy बाई dx, उसके बाद y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी दैट इज बिकम 2x, उसके बाद 2x की डिफरेंशिएशन होगी, इसको हमने मल्टीप्लाई करके कुछ ये फॉर्मेट लिख लिया है, ठीक है। इस फॉर्मेट लिखने के बाद हमने dy बाई dx की वैल्यू इंसर्ट की है, वो यहाँ पे इंसर्ट की है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन की क्या आई, ये 2x पावर 4 प्लस 2xy स्क्वायर अपॉन y पावर 4, ठीक है। इसको मजीद आप ट्राई करके आपने खुद से ट्राई करना है, आपने चेक करना है, इंशाल्लाह आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। अगेन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो अब हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है स्लोप टेंजेंट लाइन का, ठीक है। जो कर्व हमारे पास है y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका जो हमने क्या लेना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन कर्व, इसका कर्व, इस कर्व का हमने लेना है, ठीक है। पॉइंट क्या है हमारे पास, एक है 2 माइनस 1, दूसरी क्या है 2 1। इन दो पॉइंट्स पे हमने इनका जो है सिंपली जो है टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि स्लोप किस तरह फाइंड किया जाता है, डिफरेंशिएशन की जाती है उसके लिए। तो सबसे पहले हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, तो ये हमारी डिफरेंशिएशन किस तरह बनेगी, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 की डिफरेंशिएशन 0 ही आती है, ठीक है।
तो हमारे पास ये बनेगा कैसे, 2y, इसकी अगेन डिफरेंशिएशन होगी dy/dx माइनस x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -1 होगी, इसकी 0 होगी, ठीक है, 0 को नहीं लिखते हैं, तो ये जो है हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन इस तरह आएगी, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू 1/2y, ठीक है, 1/2y। ये हमारे पास सिंपल क्या आ गई, सिंपल हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गई, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, 2 और -1 पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या बनेगा, तो ये सिंपली हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पॉइंट बन रही है 1/2 की, y की वैल्यू क्या है, -1 है, दैट इज इक्वल टू -1/2, तो इस जगह पे इसका स्लोप बनेगा, ठीक है। और दूसरे को देखते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू दी, दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 1, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेंगे। सो सिंपली ये हमारे पास जो स्लोप्स आए -1/2 और 1/2। सो नाउ वी आर गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम। So here the given curve is equal to y² - x + 1. This is any curve having equation y² - x + 1 equal to 0. So we have to find the slope of the tangent line at 2 points. Number 1 point is 2 and -1. Here x value is equal to 2 and y value equal to -1. And the other point is 2 and 1. 2 is here. 2 is here. 2 is x and y is 1. So simply, according to mathematical and differentiation rule, so we know that the differentiation of the slope of the tangent line can be found through differentiation of that function. So simply what we have done here, we have seen here, this is simply any implicit function. So we have applied here the implicit differentiation. So simply what we have done, we have differentiating the function both sides. So the function becomes, this is the differentiation of this, and the dy/dx becomes 1/2y. So this is the slope of the curve, this curve. So here we have given the 2 points. Number 1 is 2 - 1 and 2, 1. So simply we have substituted the values of x and y in this function. So it becomes -1. So here it becomes -1/2. At this point, this becomes the value of the slope of the tangent line becomes -1/2, and the slope of the tangent line at the point 2, 1, it becomes +1/2. So this is the simple differentiation techniques. Hope you may understand this problem. So now we are going to discuss about the derivatives of any logarithmic function. So we have studied in functions, when we have studied the functions, different functions, we have already studied the logarithmic function in the class. So now we are going to discuss about the derivation of logarithmic function. So we know that this is any logarithmic function. This is natural logarithmic, ln x, natural log of x. So this is any natural logarithmic function. So differentiation of this function is equal to always 1/x.
and keeping in mind that x, the value of x should be greater than 0. So the simple, we know that the differentiation of log x equal to natural log of x equal to 1 upon x. So and the differentiation of log base of x, this is b, here the base of log is b, log, base log. So here the log base of b over x, this is simply becomes the natural log of x divided by natural log of b. So it is the simple differentiation of this. So or we can written this in other form as log 1 upon b, 1 upon log b, 1 upon natural log of b multiplied by 1 upon x. So this is the simple and shortest form of this. And or we can simply write this as the differentiation of base log base of base log b power x. This is in power. So log b power x equal to 1 upon x into log b, where x is greater than 0. So these are the generalized derivative formula for logarithmic function as the differentiation of log u equal to 1 upon u, again differentiation of u over with respect to x, and the differentiation of this log b over x is equal to always 1 upon log b natural log of base into du over dx, the differentiation of u with respect to x. So simply we are going to repeat this in Urdu again. देखें, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हुए हैं पहले फंक्शंस में, ठीक है, तो अब उसकी हम डिफरेंशिएशन सिंपल पढ़ते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन किस तरह होती है. ठीक है, हमारे पास ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 1 अपॉन x होगी, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी. अगर 0 होगी तो दैट इज बिकम इनफाइनाइट. ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास लॉग b, यानी b क्या है, बेस है, यहाँ पे b पावर x, पावर क्या है, x है, लॉग बेस, और कोई भी बेस 2 हो सकता है, बेस 10 हो सकता है, एनी बेस. ठीक है, बेस b क्या है, बेस है हमारे पास, उसके ऊपर पावर है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या बनती है, log x अपॉन log b. इसी तरह हम उसकी डिफरेंशिएशन लेंगे. ठीक है, ये हमारे पास किस तरह आएगी, 1 अपॉन log b मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x. ठीक है, यानी log b की जो है डिफरेंशिएशन लेंगे, उसके साथ 1 अपॉन x की मल्टीप्लाई जो है वो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन x log b, x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, अच्छा, इसका जनरलाइज टर्म हम किस तरह लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि log u की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 1 अपॉन u, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और log b पावर x की डिफरेंशिएशन हमारे पास जो बननी चाहिए 1 अपॉन u log b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हमारे पास जनरलाइज टर्म है, इसको आपने याद रखना है, ये हम फ्यूचर में यूज करेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स में. ठीक है, हमने अभी लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा. ठीक है, अब सिंपली हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, पहला प्रॉब्लम्स है y इक्वल टू log 5x, इसकी डिफरेंशिएशन लेनी है. दूसरा प्रॉब्लम है y इक्वल टू x क्यूब log x. तीसरा प्रॉब्लम है y इक्वल टू log 2 इंटू 3 माइनस 2x. चौथा प्रॉब्लम है y इक्वल टू log इंटू log ऑफ एंगल में क्या है, यानी इसके वेरिएबल में क्या है, log x. ठीक है, उसके बाद हमारे पास पांचवी में क्या है, y इक्वल टू cos, और cos की एंगल क्या है, log x है. ठीक है, तो सिंपली हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं एक एक को, और जो है हमारे पास जो आंसर आते हैं log फंक्शन की डिफरेंशिएशन किस तरह होती है वो हम ट्राई करके देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास है जो है y इक्वल टू log 5x. तो इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d ओवर dx ऑफ log 5x. ठीक है, अब देखें log 5x की क्या बनेगी, 1 अपॉन 5x. ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन किसकी होगी, 5x की होगी. ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, 1 अपॉन 5x मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि x 5x की डिफरेंशिएशन 5 बनेगी. तो देखिए ये 5 कैंसिल में हो गए, तो हमारे पास जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आई वो क्या आई, 1 अपॉन x आई. ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, y इक्वल टू x क्यूब log x.
इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx इक्वल टू डी, इसकी डिफरेंशिएशन देखें एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है एक्स क्यूब, दूसरा है लॉग एक्स, ठीक है, एक है एक्स क्यूब, दूसरा है लॉग एक्स। तो इसको सिंपली हमने करना कि कैसा है, तो एक्स क्यूब को आप ले लो, सिंपल इस तरह कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन आप लॉग एक्स की ले लो, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लस जो है लॉग एक्स को आप कांस्टेंट ले लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन आपने किसकी करनी है, एक्स क्यूब की। तो ये आपके पास कुछ इस तरह बनेगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स की 1/x आएगी, प्लस उसके बाद आपके पास जो आएगी लॉग एक्स, इसकी आएगी 2x स्क्वायर डिफरेंशिएशन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 2x स्क्वायर, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये इसकी सिंपल डिफरेंशिएशन आ गई, ठीक है। सॉरी, इसकी बनेगी 3x स्क्वायर, ये 3 है गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लॉग एक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है उसको हम देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास है y इक्वल टू लॉग y इक्वल टू लॉग 2 इंटू 3 माइनस 2x, ठीक है। इसका बेस कितना है, 2 है बेस, ठीक है, लॉग 2 है बेस। इसको सिंपली हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे बोथ साइड। तो ये हमारे पास किस तरह बनेगा, dy बाय dx इक्वल टू, इसकी भी डिफरेंशिएशन कर लें, बोथ साइड कर रहे हैं हम, d ओवर dx विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये log 2 की और इसकी एंगल है 3 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह बनेंगे, देखें हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, अच्छा ये प्रोडक्ट में है आपस में, ठीक है। तो सॉरी, अच्छा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे है एक्स स्क्वायर, यहां पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर को भी साथ में ऐड कर दें, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको, ठीक है। मैं अगर फिर से बता देता हूँ, हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग 2 ऑफ इंटू 3 माइनस 2x, लॉग बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2x। तो देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, तो ये हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह बन सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग 2 इंटू 3 माइनस 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा उसके बाद जो है इसको हम कॉमन रखते हैं, ठीक है, log 2 3 माइनस 2x को कॉमन रख लें, डिफरेंशिएशन इसकी करते हैं, एक्स स्क्वायर की करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा, इसको अगेन देखिएगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट लिया, डिफरेंशिएशन किसकी कर रहे हैं, log 2 इंटू 3 माइनस 2x की, फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट ले रहे हैं और डिफरेंशिएशन किसकी कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारा जो कॉमन बना, इसकी क्या आएगी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जनरलाइज्ड डेरिवेटिव में, देखें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई बेस फंक्शन हो, उसके ऊपर उसके साथ एक गिवन एंगल हो, ठीक है, एक्स हो,
कोई भी दूसरा हो या पावर जो u हो, ठीक है, उसकी डिफरेंशिएशन हम किस तरह करते हैं, 1/u मल्टीप्लाई बाय log b, ठीक है। उसके बाद u की डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसको हम मजीद इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही हमने सिंपल टेक्निक अप्लाई करनी है, ठीक है। हमारे पास बना x²। अच्छा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/u क्या है यहाँ पे 3 - 2x है, ठीक है। और log b क्या है आपके पास, log 2, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन अगेन लेंगे, ये क्या हमारे पास बनेगी, इसकी डिफरेंशिएशन अगर हम लेना चाहें 3 - 2x की, तो ये बनेगा हमारे पास -2, ठीक है। तो अच्छा, ये इसकी डिफरेंशिएशन हो गई, प्लस ये कॉमन, ये सेम रहेगा, log 2 × 3 - 2x। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी x² की, 2x बनेगी, ठीक है। इसको रब किया जा रहा है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, -2x² अपॉन 3 - 2x इंटू log 2। अच्छा, प्लस ये बनेगा 2x इंटू log 2 of 3 - 2x, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह बनेगी। एक बार तो अगेन डिफाइन कर देता हूं इस प्रॉब्लम को। देखिए, हमारे पास फंक्शन क्या है, y = x² log 2 × 3 - 2x है, ठीक है। बोथ साइड हमने डिफरेंशिएट किया है इसको, ठीक है। x² log 2 × 3 - 2x, x² और log 2 × 3 - 2x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फंक्शन लगेगा, प्रोडक्ट टेक्निक फंक्शन लगेगा। हमने डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं हम, पहले की डिफरेंशिएशन, पहले कांस्टेंट लेते हैं, उसके बाद दूसरे की डिफरेंशिएशन लेते हैं, जिसकी डिफरेंशिएशन ले ली उसको हम कांस्टेंट लेंगे, उसके बाद दूसरे की डिफरेंशिएशन, दूसरे टर्म की डिफरेंशिएशन लेंगे, ठीक है। तो x² को हमने कांस्टेंट लिया, डिफरेंशिएशन किसकी लेंगे, log 2 × 3 - 2x की, ठीक है। उसके बाद प्लस किया, log 2 × 3 - 2x को कांस्टेंट रखा, उसके बाद x² की डिफरेंशिएशन ली, ठीक है। हमने पिछला एक फार्मूला पढ़ा था, जनरलाइज्ड डेरिवेटिव फार्मूला में लिखा था, जो ये हमारे पास फंक्शन आते हैं log b, यानी यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस 2 है, ठीक है। उसके साथ में कुछ एंगल होती है, u होती है, जिसको हम u नाम देते हैं, ठीक है। वो अगर आपस में कुछ फंक्शन इस तरह इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनती है, 1/u log b × du और dx, ठीक है। तो देखिए, log बेस क्या है, 2 है, और एक u क्या है यहाँ पे 3 - 2x है, ठीक है। सो इसकी सिंपल डिफरेंशिएशन किस तरह लेंगे, x² कॉमन रखा है यहाँ पे, जो कांस्टेंट रखा था, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, log 2 की इसकी क्या आई, 1/3 - 2x इंटू log 2, 1/3 - 2x 1/u, ये u आ गया, 3 - 2x, log b log 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद x² इसको मल्टीप्लाई जो सेम रखा था, उसके बाद -2 किसकी आई, ये जो u था ना, u की डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो -2 आएगी, 3 - 2x यानी -2 ही आएगी इसकी डिफरेंशिएशन। उसके बाद प्लस log 2 3 - 2x को कांस्टेंट रखा, x² की डिफरेंशिएशन क्या आई, 2x आई, ठीक है। तो ये सिंपल आपस में सिंप्लीफाई किए हैं, तो हमारे पास क्या आया, -2x² अपॉन 3 - 2x इंटू log 2, ये हमारे पास क्या आ गई, dy/dx आ गया, डिफरेंशिएशन आ गई किसकी, y की डिफरेंशिएशन आ गई विथ रेस्पेक्ट टू x आ गई, ठीक है। चौथा करके देखते हैं, नंबर 4 में हमारे पास है log x इंटू log x, log मल्टीप्लाई बाय log x, ठीक है। तो चौथे को हम लिखते हैं y = log x, इसके वेरिएबल में क्या है, log x, ठीक है। तो सिंपल हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, dy/dx, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है, तो इसकी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो log x इंटू
log x, ठीक है। हमें पता है log की डिफरेंशिएशन क्या आती है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगी 1 अपॉन log x, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन x की वैल्यू क्या है log x है, ठीक है। इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन log x की आएगी 1 अपॉन x, तो हमारे पास क्या आएगी 1 अपॉन x इंटू log x, तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। सिंपल है, आसान है। हमारे पास जो डिफरेंशिएशन थी यहाँ पे हम सिंपल जाते हैं, यहाँ पे x की जगह log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे log x की जगह क्या है log x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1 अपॉन log x। उसके बाद ये u था हमारे पास, इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो log x की डिफरेंशिएशन क्या आती है 1 अपॉन x आती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कुछ इस तरह आया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, y इक्वल टू cos 5 इंटू log x, ठीक है। इसको रब किया जा रहा है, अच्छा। इसकी जो एंगल है x, उसमें क्या जहां पे x होता है वहां पे log x है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना होता है, सिंपल डिफरेंशिएशन करनी होगी, बहुत सारी डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, इसकी भी डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x cos log x, ठीक है। तो इसकी सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं। cos की डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ी है माइनस साइन, इसकी डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ log x, तो इसकी डिफरेंशिएशन log x की क्या आएगी 1 अपॉन x, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, एक बार तो अगेन समझा देता हूं, ठीक है। cos x है, ठीक है, cos x है, cos x नहीं है cos log x है, एंगल में क्या है x की जगह क्या है log x है, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन और x क्या है माइनस, यानी cos log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी माइनस साइन log x होगी। अच्छा, log x है, एंगल की अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू log x, यानी log x की डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जो है 1 अपॉन log x की डिफरेंशिएशन आएगी 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या आ गई माइनस साइन log x अपॉन x, x डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फिफ्थ 5 हो गए हैं। मजीद जो है आप इसके प्रॉब्लम्स देख सकते हैं बुक में, ठीक है। जो हमारे पास एंटन स्कॉस्की के जो बुक्स हैं कैलकुलस के, उसमें आप देखिएगा इंशाल्लाह, वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये अभी लॉगरिथमिक फंक्शन के इतने एग्जांपल काफी हैं अभी के लिए। फर्दर एग्जांपल आप ट्राई कीजिएगा, नॉर्मल है, आसान है, फॉर्मूला है, टेक्निक अप्लाई करनी है और सिंपल आंसर आ जाता है, ठीक है। एक फंक्शन है, ठीक है, हमने यूज करनी है लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास y इक्वल टू एक्स, फंक्शन में अगेन लिख देता हूं, फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन 3, ठीक है। कहा गया है इसकी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ले लें आप, ठीक है। सिंपल कहा गया है इसकी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप ले लें, ठीक है। और जो है फिर उसकी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेनी है किसकी, y इक्वल टू एक्स log x। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम किस तरह लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले log बोथ साइड अप्लाई करें, log नेचुरल log, ठीक है। ये क्या बनेंगे log y
इक्वल टू एक्स, इसके ऊपर इसके लिए भी लॉग लेंगे, बोथ साइड ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज बिकम लॉग एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह बनेगा। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, लॉग जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी सिंपल अगर इसको जो है बोथ साइड्स अगर लॉग को देखना चाहें तो ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे होगा हमारे पास लॉग 1 प्लस, यानी x को कॉमन लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मजीद अगर लिखना चाहें, लॉग y इक्वल टू लॉग x, ये 1/3 नीचे आ जाता है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज के थ्रू, लॉग 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आ गया ये जो पावर थी, इसको हमने सिंपल लॉगरिथमिक अप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। तो ये स्टेप समझ मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमें फंक्शन मिला हुआ है लॉग y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/3, ठीक है। आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लॉगरिथमिक, ये जो दो आपस में, इसको हमने क्या किया है, सबसे पहले अप्लाई किया है टेकिंग बोथ साइड, क्या लिए, लॉग लिया है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3, ठीक है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है 1/3 को हम नीचे लेके आए, ठीक है, प्लस 1/3, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी यानी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज अपने अप्लाई की है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास किस तरह बनेगा, अच्छा, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग 5 और हमारे पास इसकी भी डिफरेंशिएशन लेंगे, लॉग एक्स की प्लस 1/3 लॉग, अच्छा, डिफरेंशिएशन लेंगे इसकी भी, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब आसान होगी हमें इसकी डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि पावर नीचे आ चुका है, ठीक है। दो पावर थी, एक ये पावर थी, एक दूसरी पावर थी, तो हमने आसानी के लिए 1/3 को नीचे ले आए, ठीक है। ये 1/3 है, इसको नीचे ले आए और ये बना हमारे पास फंक्शन इस तरह। तो इसकी अगर डिफरेंशिएशन सिंपल लेना चाहें तो ये किस तरह आएगी, लॉग y की आएगी 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास किस तरह बनेगी, लॉग x की बनेगी 1/x प्लस 1/3, अच्छा, इसकी बनेगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी अगेन लेंगे 2x आएगी, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा कुछ इस तरह से, अच्छा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1/3, यहाँ पे आएगा 2x 2x/3 और जो है यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी एलसीएम ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम लेने के बाद जो बनेंगे कुछ इस तरह बनेंगे, तो यहाँ पे आएगा x इंटू 3, सॉरी, ये कुछ जो हमारे पास बनेंगे, अच्छा, इसको आसान कर लेते हैं और भी आसान कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, ठीक है।
तो इसकी सिंपल हम अगर लेना चाहें डिफरेंशिएशन, इसको इस तरह से कर लें dy बाई डी एक्स, ये जो y है इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये y इसको 1/x प्लस 2x/3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल ये डिफरेंशिएशन इसकी आ गई। एक मरतबा फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमें मिला हुआ है फंक्शन y इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3। एक पावर ये है, एक पावर 1/3 है। देखिए प्रोडक्ट रूल के थ्रू अगर करना चाहें तो जो है हो सकता है, ठीक है, पर हमें कहा गया है लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है हमने, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, सिंपली कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। क्या कौन सी, बोथ साइड हमने सबसे पहले लॉग अप्लाई किए, तो हमारे पास लॉग कुछ फंक्शन कुछ इस तरह बना, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये ओपन करके इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी, ऊपर अगर कोई पावर हो तो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने फिर डिफरेंशिएशन की है, ठीक है, log y की और इसकी यानी हर टर्म की डिफरेंशिएशन की है। डिफरेंशिएशन log y की क्या बनी 1/y, ठीक है, और इसकी dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये एक डिफरेंशिएशन बनी, ठीक है। उसके बाद इसकी 1/x 1/3 कांस्टेंट है और इसकी डिफरेंशिएशन होगी इस एंगल की अगेन डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बना, ठीक है। इसको y को हम यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशिएशन इस तरह आएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कुछ इस तरह से होते हैं, b पावर x, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर लेना चाहे वो हमारे पास किस तरह बनेगी, b पावर x मल्टीप्लाई बाय log b, यानी जितना उसका बेस था, ठीक है, log b, ठीक है, यानी जो भी बेस था उसका, उसके ऊपर जितनी पावर थी, तो सबसे पहले वो सेम रखेंगे b पावर x, यानी सेम, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे log b को, ठीक है। तो हमारे पास उसकी डिफरेंशिएशन इस तरह आती है, ठीक है। और हमारे पास कोई भी फंक्शन है e पावर x की बराबर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर x, तो उसकी डिफरेंशिएशन सिंपल सेम आएगी, e पावर x की बराबर आएगी, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म में अगर देखना चाहे इसकी बेसिकली जनरलाइज फॉर्म किस तरह होती है, वो इस तरह होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ जो हमारे पास फंक्शन है b पावर u कोई भी आप नंबर ले लें या कोई भी वेरिएबल ले लें, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन लेना चाहेंगे, ये किस तरह आएगी, b पावर u log b, ये जो u था उसकी अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, du और dx। अच्छा, ये रखना है आपने याद, ये 0 से बढ़ के होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 1 बट b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरा हमारे पास था d ओवर dx ऑफ e पावर u, जिस तरह e पावर x था हमने ले लिया e पावर u, तो इसकी डिफरेंशिएशन सेम आएगी, e पावर u मल्टी डिवाइड इसकी जो पावर है उसकी अगेन डिफरेंशिएशन ले ले, दैट इज du ओवर dx, ठीक है। इसके एग्जांपल करके देखते हैं, मजीद समझ में आएंगी, ठीक है। अगर हमारे पास सबसे पहले कोई एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, तो एक ले रहे हैं हमारे पास, पहले है d ओवर dx 2 पावर x, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम d ओवर dx e पावर माइनस 2x, ठीक है। तीसरा लेते हैं हम d ओवर dx, किसकी ले रहे हैं हम, e पावर x क्यूब की ले रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास, चौथा है e पावर cos x, ठीक है। इसकी सिंपल डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पावर x है, इसी फार्मूला को देखते हुए करना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 पावर x सिंपल आएगा, 2 पावर x मल्टीप्लाई, इसके बाद log 2, ये डिफरेंशिएशन हो गई इसकी, ठीक है। अब इसकी करके देखते हैं, ठीक है, d ओवर dx ऑफ e पावर x e पावर माइनस 2x, इसकी अगेन डिफरेंशिएशन कर लें तो ये आएगी -2 आएगी, तो ये आपके पास क्या बना, -2 e पावर माइनस 2x, ठीक है। तीसरे ही कर लेते हैं, e पावर x क्यूब है, ठीक है,
तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, ई पावर एक्स क्यूब आएगी, ठीक है। एक्स क्यूब की अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगी हमारे पास 3x² आएगी, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x² ई पावर एक्स पावर क्यूब, ठीक है। सिंपल ये इस तरह से भी हो सकती है। उसके बाद चौथा है हमारे पास e की पावर cos x है, ठीक है। तो इसकी सिंपल किस तरह कर सकते हैं इसको हम देखें। e की डिफरेंशिएशन आएगी क्या, सेम आएगी cos x। इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx ऑफ cos x। तो ये क्या आएगी हमारे पास e पावर cos x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी cos की माइनस साइन x, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन किस तरह बना, माइनस साइन x e पावर cos x इंटू साइन x। सिंपल है, आसान है, वही बेसिक आइडेंटिटीज यूज की हुई है इसमें। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा खुद से, इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो हम जानते हैं हमारे पास बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, साइन है, कॉस है, टेंजेंट है, 3 उसके अपोजिट हैं। साइन का है सपोज कर लें कॉसेक है, ठीक है। जो है कॉस का है सीकेंट है, ठीक है। और जो है टेंजेंट का है वो कोटेंजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है। इसकी डिफरेंशिएशन हम किस तरह लेना चाहेंगे, ठीक है। सपोज कर ले यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा उसके इनवर्स फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। साइन कॉस इसके इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सपोज कर ले साइन का इनवर्स जो है वो हमारे पास उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1/√(1 माइनस u²। u क्या है, कोई भी हमारे पास वैल्यू हो सकती है, उसके बाद d/dx, ठीक है। उसकी अगेन से डिफरेंशिएशन लेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास cos इनवर्स u, कोई भी फंक्शन है cos इनवर्स u, ठीक है। तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, -1/√(1 माइनस u², ठीक है। तीसरी है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स u, ठीक है। उसकी डिफरेंशिएशन किस तरह लेंगे हम, 1/1 प्लस u² इंटू du/dx, ठीक है। चौथी हमारे पास डिफरेंशिएशन है, ये है cot इनवर्स u, ठीक है। इसकी कोटेंजेंट जो है ये कोटेंजेंट है, ठीक है, दैट इज कोटेंजेंट। cot इनवर्स u, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, -1/1 प्लस u² du/dx, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन फार्मूलाज हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। पांचवा हमारे पास है सीकेंट इनवर्स u, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1/(u²-1 du/1 du/dx, ठीक है। चौथा है हमारे पास कोसेक इनवर्स u, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, -1/(u²-1 du/dx। बेसिकली जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये अप्लाई होंगे आपके जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में मुख्तलिफ जगह पे, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला याद रखना है आपने। सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा सा चार्ट बनाएं, जितने ही फार्मूलाज लिखे हैं सबको आप जो है लिखते जाएं, ठीक है। लिख कर जाएंगे, आपको आइडियाज होंगे, अपने रूम में मेमोराइज उसको लगा लें ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहे, ठीक है। तो जो है जब आपके पास रूम में नज़र पड़ती रहेगी तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी देखेंगे तो आपको सिंपल आंसर लगेंगे, उसको अप्लाई करना है फार्मूला, ठीक है। तो ये जस्ट फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, इसको मजीद समझते हैं इनवर्स फंक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें फाइंड क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। साइन इनवर्स फाइंड करना है, एक्स क्यूब इसकी एंगल है, उसकी सिंपल डिफरेंशिएशन हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो हमने पढ़ा है तो उसके मुताबिक हम बहुत सारी डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे इसकी,
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह फंक्शन बनना चाहिए d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके बाद इसकी अगेन से डिफरेंशिएशन करनी होगी, तो ये बनेगा 3x²। इसकी डिफरेंशिएशन अगेन, तो हमारे पास क्या बना 3x² अपॉन √ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये किसकी डिफरेंशिएशन है? इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, सिंपल है, हमारे पास इजी है। फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब। इसकी सिंपली हमने डिफरेंशिएशन की है, जो कि हमारे पास जी आई एक्स क्यूब आई एक्स क्यूब यू है हमारे पास। यू की अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आएगी 3x²। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन की डिफरेंशिएशन इस तरह आएगी। ठीक है, एक और करके देखते हैं। अच्छा, जहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें डिफरेंशिएशन लेनी है किसकी? e⁻x इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, इनकी डिफरेंशिएशन लेनी है, तो हमने सिंपली जो हमारे पास है dy/dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, दोनों की डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या बना e⁻x सीकेंड इनवर्स x। इन दोनों की डिफरेंशिएशन लेनी है। देखिए, ये एक है, ये दो है, आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने सिंपली क्या यूज करना है? प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल में किस तरह आएगा? e⁻x d/dx ऑफ सीकेंड इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स x d/dx ऑफ किसकी लेंगे हम? e⁻x की डिफरेंशिएशन लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, e⁻x सीकेंड इनवर्स x की हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ी है दैट इज 1/x मॉड्यूलस √ऑफ x² - 1। ये हमने फार्मूला जो अभी पढ़ा था उसमें हमने ये फार्मूला सिंपली अप्लाई किया है, प्लस सीकेंड इनवर्स x उसके बाद इसकी e⁻x की सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बना, e⁻x अपॉन मॉड्यूलस x² - 1 प्लस e⁻x इंटू सीकेंड इनवर्स x। ये सिंपल इसकी डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं मजीद समझने के लिए। कुछ पिछले प्रॉब्लम रिपीट भी करते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। y इक्वल टू e⁻x सीकेंड इनवर्स x, ये हमारे पास एक फंक्शन मिला हुआ है। इसमें आपने देखा e⁻x और सीकेंड इनवर्स x आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने इनकी डिफरेंशिएशन लेनी है। किस तरह ले रहे हैं? यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम यूज करके बाद सीकेंड इनवर्स x की हमने जो आइडेंटिटी इनवर्स सीकेंड इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो कुछ इस तरह होती है। ठीक है, उसके बाद प्लस सीकेंड इनवर्स x और इसकी डिफरेंशिएशन सेम रहेगी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने कुछ जो है dy/dx कुछ इस तरह से फाइंड किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है कि जो आज आपने पढ़ा होगा इंशाल्लाह ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और सो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।